गाइस एंड वेलकम टू सक्सेस स्टोरीज। आज है हमारा एपिसोड नंबर 11 एंड आज बहुत ही पावन दिन है। इट इज अ गुरु पूर्णिमा एंड आप जानते ही हो कि आज हमारा गुरु पूर्णिमा स्पेशल एपिसोड है। सो गाइस, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी के। अच्छा हार्दिक, પણ લાઈફમાં ગુરુની જરૂરત કેમ પડે છે? ગુરુ આપણા દેશમાં ગુરુને સંત પણ કહેવાય છે અને આપણા ઇતિહાસમાં આવા ઘણા દાખલા છે। કહેવાય છે કે સંત ના હોત સંસાર में तो जली जात ब्रह्मांड। આહા, संत ना होत संसार में तो जली जात ब्रह्मांड। आ तो ज्ञान केरी लेर छे, वो तो ठारत ठामो ठाम। વાહ વાહ હાર્દિક વાહ। પ્રાતઃકાલ આપણને જેનું આપણે સ્મરણ કરીએ અને આપણા કર્મો કપાઈ જાય એ હોય છે ગુરુ। આપણા બધાના આઈડલ સર સચિન તેંડુલકર આજ બી એમના સર શ્રી રમાકાંત આચરેકરે નથી ભૂલતા। અરે ભાઈ, ઋતિક રોશન એમને બી આ સ્ટેપ્સ માટે ફરાહ ખાનની જરૂરત પડી હતી। સો એડવાઇસની તો જરૂરત હંમેશા પડે જ છે। ઓફકોર્સ, રાઇટલી છે કૌશલ। તમે દૂધ વાળો રાખો જે તમને ઘરે દૂધ પહોંચાડી જાય, શાક વાળો ઘરે કદાચ શાક પહોંચાડી જતો હશે। આજકાલ તો દોસ્તારો મેડિકલ વાળા પણ દવાઓ ઘરે પહોંચાડતી કરે છે। સાચી વાત। આ તો બધી દેહની વ્યવસ્થા છે, પણ આત્માની અને મનની વ્યવસ્થાનું શું? એના માટે છે ગુરુ। સાચી વાત। આપણો દેશ તો ગુરુની પૂજા કરવા વાળો દેશ છે। આપણા દેશમાં અનેક ગુરુઓ છે, જેમ કે ચાણક્ય, બાલ ગંગાધર તિલક, ઓશો, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, જેની આપણે જયંતિ બી ઉજવીએ છીએ। ગુરુવાણી સેલિબ્રેટ કરવાની પરંપરા આપણે કરીએ જ છે। દોસ્તો, એમ કહેવાય છે કે થાઉઝન્ડ ઓફ માઇલ્સ ઓફ જર્ની સ્ટાર્ટ વિથ અ સિંગલ સ્ટેપ। અને આ જર્નીમાં જો તમારા ગુરુના આશીર્વાદ હશે ને તો એ ક્યાં કપાઈ જશે ખબર પણ નહીં પડે। સો વધારે ના બોલતા, ચાલો આપણે આપણા ગુરુ અને આજના ગેસ્ટ નું સ્વાગત કરીએ। કહેવાય છે કે સિર્ફ નામ ही काफी है, પણ આ જે ટેગ છે સિર્ફ નામ ही काफी है, એના માટે શું મહેનત લાગે છે એ આપણે જાણીએ। એન એડ્યુપ્રેનર, a career counselor and a motivational speaker, Ashish Maru. Hello Ashish sir, welcome to Success Stories, एक सफलता की कहानी। Thank you very much. Jim, we have already mentioned in the introduction કે તમારું સિર્ફ નામ ही કાફી है। आज તમે બોરેવલી, કાંદિવલી, મલાડ, ગોરેગામ ક્યાંય બી જાઓ, આશીષ સર થી ઘણા લોકો તમને ઓળખે છે। અને આનાથી જ એક મારો પહેલો જ ક્વેશ્ચન તમારા માટે આવે છે Okay. કે આ નામ બનાવવા માટેની પાછળની સ્ટોરી, પાછળની મહેનત શું છે? સો કેન યુ જસ્ટ હાઇલાઇટ સમથિંગ? Yeah, sure, Kaushal bhai. First of all, thank you very much to Kaushal bhai and Hardik bhai and Success Stories. मैं आज ना बहुत important day है आज का गुरु पूर्णिमा। I wish you all blessed day and blessed year, so that everyone wants to success in their career. So basically today is the fine day, and yes, we'll move with our questionnaire. Your first question was the story. So basically आपका थीम ही वो है, so we'll start with my success story that 2000 का साल था। It was 2000 का year to Y2K क्रॉस हुआ था, and the new generation, new technology का era था। So at that time, even we were studies and our graduation was there and everything was going on, but in between one fine day, come to meet with technology. So technology के साथ joined up हुए and started with computers, and again with my graduation I have started, but the vision was that के कुछ करना है, कुछ बनना है, so we need to do. But at that moment, I must say very honestly कि each and every, मतलब at the age of 18, 19, 20, college crowd, college people, college वाला feeling, वही canteen, वही campus, everything सबका वही होता है। But still out of that, अगर
हम कुछ अगर कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वी नेवर नो वो एक्टिविटी हमें कोई अच्छी जर्नी पे लेके जाए. और ऑलवेज इट हैज बीन ऑलरेडी सेड दैट सक्सेस इज अ जर्नी. ओके, डेस्टिनेशन तो नहीं है. वी ऑल आर मूविंग अहेड एंड अहेड. So the 2000 का साल, and I was started with just my basic stuff. Trainee में मुझे रखा गया था. I was at first even at Raj Computers Academy only, and I started my journey in Mumbai only. And मुंबई में ही मुझे राज कंप्यूटर के गोरेगाम की ब्रांच से शुरू किया गया था. So at that moment I was just trainee, and I'm just new for the technology. नए नए चीजों को अडॉप्ट कर रहे थे हम, and slowly and gradually interest begins, and then धीरे धीरे इसमें और डेप्थ कर रहे थे. That time I must say कि स्ट्रगल एरिया वाज ऐसा था कि इंटरनेट तो जैसे कोई दिवाली के जैसे त्योहार के जैसे देखने मिलता था, जस्ट 20 years बैक. सो नाउअडेज एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. यू मस्ट से कि अपना ऑक्सीजन इंटरनेट है, बट एट दैट टाइम एक दिन अगर इंटरनेट चालू होता था तो जैसे कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था, लाइक दैट. तो वो रामायण महाभारत वाले दिन के एक दिन टीवी पे आने वाला है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो मतलब वैसे दौर में कुछ लर्न करना है, यू नीड टू लर्न समथिंग, वो भी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग. Nowadays it is very easy what we are giving at our institute, superb experienced faculties, programmers, teachers, everyone is, what we are hiring is experienced team and everything with me. But at that moment if I compare, so मैं generally सब students को या जितने मेरे experience inquiries, admissions आ रहे हैं, उनको वही बताते हैं कि you people get everything 5 star, like silver spoon है आपके साथ, एंड आपको सिर्फ बस एक डिसीजन लेके जस्ट यू नीड टू कम. मतलब पेरेंट्स तो रेडी है करवाने के लिए, बट स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड. सो द जर्नी वाज लाइक दैट. तो स्ट्रगल एरिया काफी था. स्टार्ट किया ट्रेनिंग के तौर पे, कुछ टेक्नोलॉजी लर्न की, देन दो हायरार्की सिस्टम मेंटेन करनी पड़ी. सो दैट अगेन ट्रेनी, देन जूनियर फैकल्टी, देन सीनियर फैकल्टी. In between years passing on, graduation complete किया, then related to further studies कुछ थे ऐसे diplomas किए, and technology से continuation working on था. And then after that journey, final day came that I got a chance of entrepreneurship, where education के ही sector को continue करना था. वैसे एक mindset भी set हो चुका था. And then started with 2005-6 years की जो एक struggle area, first inning start हो गई, and then secondly start किया, and again the second phase of struggle has started, that we need to make our good service, customer name, fame, everything we need to collect. So धीरे धीरे everything goes on, and with God's grace today is the fine day where we can at least talk that on this platform, at least on your platform also, के कुछ शेयर करने के काबिल है, कुछ चीजों के रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. सो मच ऑफ स्ट्रगल, एंड आई मस्ट से ऑन दैट दिस क्वेश्चन एटलीस्ट कि चलो स्ट्रगल सब लोग करते हैं, बट इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. योर विजन शुड बी क्लीन. आपकी विजन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द सेकेंड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है योर पैशन अबाउट योर वर्क. मतलब हमें आज के यंग जनरेशन को हम देखते हैं जल्दी से उबल जाते हैं, जल्दी से हम लोग को लगता है कि यार सक्सेस मिल जाना चाहिए. तो सक्सेस तो मैंने ऐसा ही टोल्ड कि सक्सेस इज ऑल अबाउट अ जर्नी. वो तो फील करना है, एंजॉय करना है, एंड यू जस्ट मूव ऑन वाला कल्चर है. बट द पॉइंट इज दैट आप जो चीज के लिए फोकस्ड हो या जो चीज कर रहे हो, वहां पे आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, ऑडियंस, स्टूडेंट्स जो भी आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से कुछ पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं. तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में कि स्ट्रगल, हार्डवर्क डेफिनेटली इज इम्पोर्टेंट, बट साइमल्टेनियसली योर स्टिकीनेस, आपको स्टिक होना है, सक्सेस जरूर आपको मिलेगा, और वो जर्नी को आप जरूर एंजॉय करोगे. इट्स लाइक दैट. करेक्ट. वेल सेड सर. एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा ब्रीफ में समझाया, बट एक मुझे और एक यहाँ पे पूछना है कि ऐसा कोई मूवमेंट जो आपको याद रहेगा आपके स्ट्रगलिंग डेज से, ऐसा कोई मूवमेंट हो जो आपको याद रह गया हो कि यार ये मेरा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था, ऐसा कुछ? इनिशियल स्टेज पे we can talk on current topic, like, so there are always as I told, one factor was the technology. कि बहुत इंस्टेंट एंड इजीली अवेलेबिलिटी नहीं थी टेक्नोलॉजी की.
आज कैसा है, कुछ लर्न करना है तो इफ फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड चिल्ड्रन और अ चाइल्ड और अ किड कैन गो टू गूगल डायरेक्टली. अगर पापा मम्मी ने आंसर नहीं दिया तो वो गूगल कर लेगा. बट एट दैट मोमेंट एक चैलेंज बहुत बड़ी थी. एंड सेकेंडली लोगों के मन में फियर फैक्टर था, नथिंग नेगेटिव बट ऑन पॉजिटिव साइड, कि मैं किसी को सिखाऊंगा तो मेरा ड्यूटी कम हो जाएगा या मेरा कुछ ये हो जाएगा. तो इनिशियल स्टेज से ये फीलिंग्स थे लोगों में कि तो वो मोमेंट एक माइंड में था कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ बनना है. एंड ऑलवेज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मुझे मेरा ही रिकॉर्ड ब्रेक करना है. सो यस्टरडे जो जहाँ थे वहां से ही नेक्स्ट डे के लिए हम लोग को प्रिपरेशन करनी है. सो ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है कि हमने कल कुछ नहीं कर पाया तो मैं आज कुछ नहीं करूंगा. सो दैट इज माय स्ट्रेंथ. कि नहीं, नेक्स्ट डे वी नीड टू ब्रेक अवर ओन रिकॉर्ड बेसिकली, रादर कंपेयरिंग अवर सेल्फ एंड टॉकिंग यहाँ वहाँ की बातें या whatever ग्रुपिज्म पॉलिटिक्स, वो सब जगह पे चलता है एवरीवेयर. एंड आई थिंक करंट टॉपिक ऑन द टाउन इज गोइंग ऑन ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म. तो वो सबको फेस करना पड़ा है यार. सो इट्स लाइक है. बट हमें एक मकसद, फोकस, एज आई टोल्ड ना, विजन रखना है माइंड में. तो उसकी इंटरनल, तो if we are talking our God and if we are having so much of stories of our ideals, तो उन लोग को भी problems तो बहुत आए हैं. If we are talking from Ramayana and Mahabharata time, so everyone, our ideals got problem, God got problem, but they fight well. They always inspired us कि आपको डटे रहना है आपके काम के लिए. So that is the only challenge which I got कि कुछ चीजों में टेक्नोलॉजिकली भी इजीनेस नहीं था. वी नीड टू स्टडी फ्रॉम बुक टेक्नोलॉजी, जो आज के डेट में बहुत इंस्टेंट है. कोई बुक से टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहा है, इधर दे गो ऑनलाइन और ऑफलाइन और अ टीचर और अ ट्यूटर. बट एट दैट मोमेंट वी नीड टू गो विथ ऑल बुक्स एंड एवरीथिंग, एंड वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ अवर सीनियर्स एंड एवरीथिंग कि कहाँ से नॉलेज अच्छा मिले, लाइक दैट. एंड देन द एक्सपीरियंस गोज अहेड. राइट. आशीष सर वेल एंड ट्रूली सेड के, वही मैं बोल रहा हूँ सर, ये सेड वेरी ट्रूली सेड के स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है. एंड आपके प्रोफाइल में भी वो दिख रहा है सर कि आप फ्रॉम द ईयर Y2K 2000 से लेके दिस इज 2020, ગુજરાતીમાં કહેવા જાય તો 2 દાયકા સર, that is not a short period sir, કે જે 20 years ની journey and still we are waiting for more and more of these years to see your journey. તો તમારા પ્રોફાઇલમાં what we again highlighted is કે you are an edupreneur, career counselor and a motivational speaker. તો career counselor and motivational speaker બધાને ખબર છે, but what is edupreneur? કે આ ટર્મ છે જે ઘણાને હજી ફેમિલિયર નથી, ખબર હોવા છતાં બી they don't know what is edupreneur. એમાં કઈ અલગ અલગ ટાઈપ છે, એનું ફ્યુચર શું છે, if someone is willing to become an entrepreneur, કેવી રીતના પોસિબલ છે, જરા એના ઉપર જરા very nice question हार्दिक भाई, and you got it well, एकदम perfectly आपने पकड़ा है उस पॉइंट को कि edupreneur is all about entrepreneurship. Okay, how we are talking business and variety of टिपिकल, हम हमारी भाषा में अगर बोले तो एक व्यापारी, बिजनेस, बनिया बुद्धि. सो इट्स लाइक एड्यूप्रेन्योर इज द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंड वो एंटरप्रेन्योरशिप के इंटरनल एजुकेशन सेक्टर में वॉट एवर सर्विसेज यू आर पासिंग अप, वो सब एड्यूप्रेन्योरशिप में आ रही है. यू विल बिकम अ एड्यूप्रेन्योर इफ यू आर रिलेटेड टू एजुकेशनल सेक्टर, whatever field of education. There are a variety of educational streams nowadays. Okay, we are talking computer institution, play school, mother toddler, then yoga, dance, academy, whatever academic or non-academic or any institution who are going to give the knowledge. They are imparting knowledge. They are providing some sensible delivery of knowledge. And they are making lives of people. They are making the career of thousands and lakhs of people. Those all activities under entrepreneurship, where you can talk to life coaches, motivational speakers, trainers, soft skill trainers, anyone who are into a thing related to training, and that all. And consulting, nowadays a new concept is of consulting also related to education again. So everything is under education.
કરેક્ટ. Right. So, what do you think? What could be the future of entrepreneurship? Yeah, the future is bright, absolutely bright. You know, we must say in current situation, or you say previous days, if I'm talking 2000 years, so if 20 years back, 20 years now of the future, or whatever years may go on, this, you know, way of teaching, way of things, technology, what we can say, change is constant. Okay, it's like that. Change is constant. If we are talking शिक्षा स्टडी पहले भी थी, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगी. एजुकेशन कभी बंद नहीं होगा. भविष्य में भी एंड यू नो highest and the first priority, most prioritable, if we can talk on business side or a profession, then too education is there. Or apart from business and profession, this is the need of, you know, our बोलिए, need of the generation बोलिए, need of the nation बोलो, need of the world बोलो. So education का future always the best रहेगा. And you must say and you must agree nowadays कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों में, everywhere we feel from morning to evening, so there are different type of, you know, classes and coaching and academic, non-academic stuff are going on. So I must say, not is it is my, I'm into the computer, but I'm talking entire education sector, which, you know, absolutely going correct. Only discipline we need to follow is what you are saying, that you need to complete, that you need to commit, whatever is your commitment, that you need to fulfill. Okay, because in each and every industry there are two type of ways. One is एक दिखता है तो यू नो बाद में उतना रिटर्न भी उसमें मिलना चाहिए, वो डिलीवरी भी होनी चाहिए. दिखता है तो दिखता है का कंसेप्ट नहीं है. वी नीड टू गिव एंड टू एंड, यू नो, delivery of our product or a service, whatever, you know, whatever field we are, but that you need to understand. Especially this is this very sensitive thing that we are making lives of so many, you know, experienced kids and students. Like, तो एजुकेशन में सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जन आए, बहुत जन गए, और कंसिस्टेंसी का इश्यू आया. बाकी सबको रिस्पांस मिला, ऐसा नहीं है किसी ने फेलियर पाया. एवरीवन वाज सक्सेस, बट द कंसिस्टेंसी वाज द इश्यू एंड द माइंडसेट वाज द इश्यू कि लाइक, यू नो, मुझे 100 रुपए में फिर 50 रुपए का कैसे देने का, वो माइंडसेट है. So I think you'll finish, you'll be out. That should be not the, you know, target. Your target should be 100 rupees की चीज है तो at least 100 दीजिए, and 110 का दीजिए, then you will be the most successful as per my definition of educationist. राइट. आशीष सर, एक ये जो आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया है कि गिव एक्स्ट्रा, तो इसी तरह की सीख आपको आपके गुरुजी ने दी होगी, वही सीख आप आगे ही पास ऑन कर रहे हैं. दैट इज द बेस्ट एडवाइस यू कैन गिव टू एनीवन, जो भी आपके यहाँ जो भी रिलेटेड फील्ड में हो. इट्स ऑलवेज गिविंग एक्स्ट्रा. तो एक जो सेटिस्फेक्शन जो होती है वो, एंड अगेन हम लोगों ने हमारे लास्ट इंटरव्यू में भी यही बोला था कि एजुकेशन इज द मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस. एंड उस बात को, उस पॉइंट को आपने फिर से आज एकदम ही क्लियर कट एक्सप्लेन कर दिया हमारे ऑडियंस को. वेरी वेल सेड. और सर यू डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पॉइंट अपना रखा था कि एजुकेशन कहीं पे भी नहीं जाने वाला है, बट ये जो टर्म है एड्यूप्रेनर, वो भी बहुत जरूरी है. बिकॉज भाई टीचर्स को भी कमाना है, वो खाएंगे क्या, उनका घर कैसे चलाना है, बट सेंसिबली चलाना, दैट इज व्हाट इज एड्यूप्रेनर. एक ये आता कि बीइंग अ टीचर, आप कोई स्टूडेंट में, या आपने बहुत जगह करियर काउंसलिंग किया रहेगा, तो आप कोई पर्सन में उसकी स्ट्रेंथ कैसे ढूंढते हो, एंड उसकी स्ट्रेंथ को आप कैसे बाहर लाते हो, कैसे उसको हाईलाइट कराते हो. मतलब अगर मेरे में ये स्ट्रेंथ है तो मुझे वो कैसे हाईलाइट करनी चाहिए, उसमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए. व्हाट यू विल से अबाउट इट? See, there are two parts basically. When, you know, first, कभी भी कोई भी बंदा, कोई भी, if we are talking our own self, मैं कुछ सीखने की कोशिश करूंगा, if I am new in that, तो मेरा फर्स्ट मोटिवेशन और मेरी फर्स्ट चीजें यही रहेगी कि सामने वाला मुझे प्रेस न करे कहाँ पे, मुझे प्रेशर न दे कहाँ पे, मुझे ये ना बोले अरे यार तेरे को तो आता नहीं है, यू आर नॉट, यू नो, फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड, और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंप्यूटर. ऐसा अगर फर्स्ट डे पे ही किसी ने क्लीन बोल्ट कर दिया किसी को, तो आई थिंक दैट इज द वर्स्ट पार्ट. ये नहीं करना चाहिए. फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट कि सामने वाले की स्ट्रेंथ को डेवलप करना है,
So in my dictionary, in my academy, in my institution, my first rule is that to entire my team, entire मेरे जितने भी 20 years के साथ मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, 18 years experience फैकल्टी है, वो अपने फील्ड में बेस्ट है. दे आर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, दोज आर वेब डिजाइनर, दोज आर यू नो एन नंबर ऑफ देयर. बट मेरा फर्स्ट एक ही हम लोग को फर्स्ट डे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट and each and every month we have a discipline of meeting where you know we are conducting meeting with our teachers and एक चीज बोलते हैं कि किसको कितना आता है वो हमें फर्स्ट चेक नहीं करना है, फर्स्ट हमें उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है. तो इफ समवन इज कम्स टू अस दैट मीन्स उसे कुछ सीखना है, तो हमें वो चीज पे ज्यादा फोकस करना है. तो ही और शी मस्ट बी मोटिवेटेड, वो मोटिवेट होना चाहिए उस चीज से, जिस लक्ष्य से, जिस टारगेट से एक पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुआ है, तो उसकी वो कनेक्टिविटी को मेंटेन रखो. अगेन देयर आर टू टाइप. समटाइम्स देयर आर पीपल, इफ यू आर टॉकिंग वेरी लाइटली, तो थोड़ा फन मस्ती के लिए भी आते हैं, कॉलेज क्राउड वाले ग्रुप होता है. बट बिलीव मी, सेकेंड पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर का कन्विक्शन, टीचर का नॉलेज, टीचर की इम्पैक्ट इतनी अच्छी है, उनके नॉलेज में इतना टेम्पटिंग है वो नॉलेज. तो इट्स लाइक यू नो कि जो मस्ती करने वाले स्टूडेंट्स भी आए हैं वो भी बहुत अच्छा सीरियस करियर बना के, आज के गुरु पूर्णिमा के दिन पे आज मैं वही डिस्कस कर रहा था मेरे फैमिली मेंबर्स के, कुछ स्टाफ से, कि लाइक जुने लोग भी कितना याद करते हैं जिनको हम देखते थे कि यार ये तो मस्ती खोर था अपने बैच का, बट स्टिल यू नो दे वर द naughtiest person, but they are like successful and they are you know doing in their field good things and the remarkable stuff. बट आज वो लोग याद कर रहे हैं एंड वो लोग भी वही चीज से हंसते हैं, सेम जैसे कौशल भाई की स्माइल निकली कि आपको सामने वाले को मतलब मोटिवेट करना है, स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए आपको उसके साथ कनेक्ट आपको भी होना पड़ेगा. एंड देन वंस योर नॉलेज इज गुड, मतलब देखो ऐसा होता है ना, एक होता है कि जस्ट एक यू नो रटाला पक कर दिया, और एक टीचर है वो कंसेप्ट से जाएगा. इट्स लाइक कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मस्ट सजेस्ट कि वो स्ट्रेंथ, सामने वाले की स्ट्रेंथ को बाहर निकालने में मैग्नेट का रोल प्ले करेगा. तो दैट इज द फाइन आंसर व्हाट आई कैन से, व्हाट आई फील पर्सनली. કન્સેપ્ટ કા આપણે બોલા ગુજરાતીમાં કહાવત છે, ખાલી ભણવું નહીં ગણવું બી જરૂરી છે. સો that is what આશિષ સર is trying to say. સ્ટુડન્ટની વાત નીકળી છે તો એક એવું કઈ મજેદાર એક્ઝામ્પલ કે મજેદાર ઇન્સિડન્ટ કઈ યાદ છે સ્ટુડન્ટ સાથે કે તમને યાદગાર રહી ગયો હોય, ઓર ફની મોમેન્ટ એવું કઈ બી? ફની મોમેન્ટ so many, मतलब हमें यू लाइक यू नो we believe in fun living coaching environment. Okay, मतलब वो टिपिकल एकदम स्ट्रिक्टनेस एंड बिकॉज कैसे है ना, लाइक इफ यू become in this generation especially if we are very strict, then you know आपका स्टूडेंट नेक्स्ट डे से नहीं आता है. तो what you will do? So we need to understand that उसे भी कंफर्ट देना है एंड बहुत सारे फनी मोमेंट होते हैं. बट एट प्रेजेंट कोई ऐसा स्पेशल तो फनी मोमेंट खास याद नहीं आ रहा. मैं ऐसा बोलूं कि you can tell something, कोई इन hint दिस दीजिए. कोरोना टाइम, अगर ये समझो कोरोना टाइम में हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि लाइव लेक्चर में स्टूडेंट टीचर की मस्ती करता है, तो ऐसा आप ऐसे टाइम में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? यस, ऐसे तो होता है. देखो कैसे होता है, मस्ती तो नहीं होती है बट इतना थोड़ा डिसिप्लिन इतने सालों में बना लिया है. बट पॉइंट ये होता है कि एक है ना ऑनलाइन में, आई डोंट नो वेदर यू हैव एक्सपीरियंस कि व्हेन टीचर आर यू नो एंगेजिंग विथ लेक्चर और यू नो प्रेजेंटेशन, उनकी स्क्रीन शेयर होती है तो मार्क्स कर सकते हैं, एनोटेशन करके एक ऑप्शन आता है. तो नाउअडेज पीपल आर वेरी स्मार्ट, स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होते हैं, तो वो जनरली हम लोग बताते हैं कि राउंड करने के लिए स्पेशली कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो नाउअडेज स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं कि टीचर का लेक्चर चल रहा है और वहाँ पे कहाँ पे मार्किंग्स आते हैं, कुछ ड्राइंग्स हो जाते हैं, कहाँ पे हार्ट शेप आ जाता है. तो वी सडनली फील अरे ये हार्ट कहाँ से आ गया, लाइक दैट. तो वो ऑप्शन भी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बंद कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड ऑल्सो कि कौन वो कर रहा है. तो डेफिनेटली, बट दैट स्टफ इज देयर, होता है कुछ ना कुछ ऑनलाइन में भी. वी फाइंड सम नॉटीएस्ट थिंग नाउअडेज. सर वही के अगर स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट है तो ऑब्वियसली गुरु उनसे ज्यादा स्मार्ट ही है. तो स्टूडेंट्स चाहे कितनी भी मस्ती क्यों ना कर ले, गुरु तो गुरु ही रहेंगे, वो आपको पकड़ ही लेंगे.
बट सर, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आपने थोड़ी सी ग्रुपिज्म की बात की, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म की बात की, तो Sorry, Hardik bhai. Yeah, sorry. Yes, Hardik bhai. वही सर, मैं वही बोल रहा था कि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य ही Right. रहेगा। ओके, सो थोड़े टाइम पहले आपने जो बात की थी कि थोड़े ग्रुपिज्म की हो गई या क्रिटिसिज्म की हो गई, तो ये जो थ्री सीज जो हम बोलते हैं इन जनरल टर्म्स, जो कंपैरिजन हो गया, कंपटीशन हो गया और क्रिटिसिज्म हो गया, तो इन थ्री सीज में आपका क्या व्यू है, आप क्या बोलना चाहेंगे उस Okay, पे? which three C you told me? One is comparison, one is competition, and one more was criticism. Criticism, right? क्रिटिसिज्म। Yes, definitely. See, it's team C. Again, Hardik bhai, I think well prepared and bold कर रहे clean. सर आप मेरे गुरु है सर। अभी गुरु के गुरु के सामने हमको आना है तो हमको हमारा होमवर्क तो करके ही आना पड़ेगा। 100%. ऑब्वियसली। Yes, so I'll start with first C. That is, you told me कि comparison. Suppose मैं strongly believe करता हूँ कि comparison करनी चाहिए, but अपने आप के साथ. That's it. मतलब किसी और से comparison नहीं करनी चाहिए. Do comparison with your own self. ओके और सेम पैटर्न सेम प्रैक्टिस मैं मेरे किड के लिए भी डेवलप कर रहा हूँ, मेरे एज अ पेरेंटिंग रोल में भी वो मैं फोकस कर रहा हूँ। एंड इवन इन माय एंटायर स्टूडेंट करियर लाइफ में भी हम लोगों ने कभी एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं किया ना। हमारी एंटायर टीम, हमारे बीच 2 to 3 जनरेशन के टीम वर्क हो चुके हैं लाइक इन 20 years। बट कोई टीचर ये नहीं बोलेगा तेरे से ये अच्छा सीख रहा है, तेरे से वो अच्छा सीख रहा है। यस, वी डू क्विज, we do competitions, we do good challenging tasks, assignments, जिससे हम लोग डेफिनेटली उसका पावर एम्पावर करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंपैरिजन तो अपने आप से करो। ओके, सेकेंड वाज आई थिंक कंपटीशन। ओके, कंपटीशन ये 20 years इफ वी कैन टॉक एंड आई एम इनिशियल स्टेज से अगर दिन याद करे तो कट थ्रॉट कंपटीशन था। कट थ्रॉट कंपटीशन मतलब एक सिंपल ऑन लाइटर साइड, इफ यू नो 20 years बिफोर एक 2000 का बेसिक कोर्स बेचते थे तो बाजू में कोई 1000 और 1500 में बेचता था। फिर बोलते थे अच्छा राज कंप्यूटर्स वाले ने 1500 में दिया है तो हम 750 में देंगे। एंड देन वी यूज टू टॉक लाइक दैट कि सामने वाले को बोलो कि राज कंप्यूटर वाले ने तो फ्री में दिया है तो फिर अभी वो आपको और क्या दे रहा है लाइक। इट वाज लाइक दैट कि कंपटीशन तो बहुत देखा है सर। एंड वो रहेगा एंड इट इज गुड, कंपटीशन रहना चाहिए सो दैट व्हाट आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि हमें 100 रुपीज की कोई चीज है उसकी वैल्यू देनी है तो 110 देना चाहिए और मोर देन दैट देना चाहिए। So competition makes you disciplined, competition makes you perfect, competition makes you aware about alertness आपकी always, जागरूकता आपकी रहेगी। ओके, बट अदरवाइज पर्सनल लेवल पे कंपटीशन मेरा कुछ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, मेरे खुद के साथ है। ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई मस्ट से टू एवरीवन, मेरे जितने स्टूडेंट्स टीम है, कंपटीशन अपने आप से करो। From last consistently when I have started association with Raj Computers, being entrepreneur, okay, and entrepreneurship start की मैंने 15 years उसे हो गए, 5 साल मेरी जर्नी थी, 20 years टोटल है। तो 15 years में constantly in number wise, rank wise amongst our entire 140 plus network में across the India, our branch, our center, our academy, our where I am working is constantly coming on a rank of first, second, top two में always we are there। and बोलते हैं ना कि हम लोग ये चाहते हैं कभी कभी कि जीत के भी हारने वाले को बाजीगर बोलते हैं वाला सिचुएशन है। because we don't want now rank, we don't want now number game is just a number, really number for us, just what we want कि हमें हमारे records को break करना है, that's it, that is my simple attitude। So one was your comparison, second was your competition, and the third was your criticism। Criticism in my technical and technological language में मैं बोलूँ तो it is a bug। Now what is the meaning of bug to entire audience viewers सबको बोलूँ तो bug is a error। वो एक एरर है, क्रिटिसिज्म तो एक एरर है, जस्ट इग्नोर इट। देखो आपको कोई स्क्रीन पे एरर आ रहा है व्हेन यू आर यूजिंग कंप्यूटर और सम पॉपअप्स आते हैं, वायरस आते हैं, तो एट दैट मोमेंट यू इग्नोर इट, आप कैंसिल करते हो। बट यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट। आपको वो क्रिटिसिज्म में से सीखना है। उसकी एंटी वायरस, कोरोना इज अ वायरस,
ठीक है, बट हमें मूव ऑन करके चलना है. आज के डेट का करंट टॉपिक, करंट अफेयर है, हाईली everyone, entire world is facing with this pandemic. So it is a bug, it is a virus, और इसकी एंटीवायरस बस 15 अगस्त तक डिक्लेयर हो चुकी है कि निकलेगी. एंड वी आर seeing a beautiful world again and again, and we will we are the generation जिसने second birth लिया रहेगा, वैसा फीलिंग आएगा. So I must say that criticism is a bug. Ignore it, move on, and lesson जरूर लेना चाहिए, हमें सीखना चाहिए उसमें से. But apart from that, all the criticisms are positive side. करेक्ट. क्रिटिसिज्म को इग्नोर करो बट उससे Yeah. सीखो. वेरी वेल सेड आशीष सर, बहुत अच्छा. कंपैरिजन और कंपटीशन अपने Yeah. आप से करो, ये भी बहुत अच्छा था. बट मेरा इससे सवाल ये है कि समझो कोई और अगर आपको किसी और के साथ कंपेयर करता है टू डीमोटिवेट, या कोई और क्रिटिसाइज करता है जानबूझ के, तो आप उसको Yeah, कैसे फेस that I करेंगे? told. बिकॉज Yeah. जैसा आपने बोला कि ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म ये हर एक जगह Yeah, होता yeah. है, तो ये चीज को आप कैसे इवन आई कवर्ड दैट, मतलब रिसेंट के वो बोलते हैं ना कि काफी टाइम ऐसा होता है, बट हमें भी फील होता है, पता भी चलता है लाइक के कौन कहाँ क्या था, बट हार के भी जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं, वैसा हिंदी फिल्म लोग ने सिखाया है हमें. तो वो कैप्शन को लेके आगे बढ़ना है. दैट्स इट, नथिंग टू वरी. हमें उस चीज का पैनिक नहीं लेना है दिमाग पे कि व्हाई ऐसा हुआ. होता है, नो डाउट, सबको अपना हार्डवर्क होता है, डेडिकेशन होता है, आपका एक पैशन होता है, तो फील तो सबको होता है, हर्ट भी होता है ना, बट यू नीड टू कम अप फ्रॉम दैट स्टफ. बाहर आना पड़ेगा उसमें से, अदरवाइज हम लोग कहाँ ना कहाँ गिव अप कर देंगे कोई चीज को. तो इट्स ओके, दैट इज द पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द गेम. जस्ट मूव ऑन, फॉरगेट इट. राइट. आशीष सर, मतलब ऑडियंस में आपको बता दो, कमेंट सेक्शन ओपन है. आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आशीष सर इज हियर लाइव. ही विल आंसर योर क्वेरीज. एंड आशीष सर, जैसे आप जो बोलते जा रहे हैं, वो मेरे माइंड में इतना अच्छे से फ्रेम होते जा रहा है ना कि व्हाट यू आर सेइंग कि गुड कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, वो सब जरूरी है हर किसी को अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. राइट. सो नाउ कमिंग टू द थिंग, आपने ये भी बोला कि कोरोना एक वायरस है जिसका एंटीवायरस बहुत जल्दी अनाउंस हो चुका है कि आ रहा है मार्केट में. तो आफ्टर द कोरोना वायरस थिंग, अगर मैं ये बोलूं, और अगर मैं इसको गुजराती में अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर फ्रेम करूं कि आखी दुनिया ने जानता, मानता અને વખાણતા જો શીખવાડવું હોય તો હાઉ ઇઝ ધેટ પોસિબલ? गाइस, जो इंग्लिश मतलब जो गुजराती जिनको शायद कम समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, मैं आशीष सर से मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरी दुनिया में एक जो ह्यूमैनिटी है, जिसको पहचाननी जरूरी है, जिसकी बात करनी जरूरी है, और जिसको अप्रिशिएट करना भी जरूरी है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? आशीष सर, प्लीज. That's possible with your hard work. First of all, you must be on the path of hard work. So you are from silver spoon age. अगर आपने सिल्वर स्पून से भी मतलब खाना खाया है तो इट्स ओके, बट योर पेरेंट, योर गाइडेंस, योर गाइडर जो भी है, उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आवर चिल्ड्रन और अ किड मस्ट बी ऑन अ पाथ ऑफ हार्ड वर्क. Honesty is the second important answer for your question. कि person must be honest by अपने आप से honest होना चाहिए, ये दुनिया से honest होना चाहिए. So hard work, honesty, and the humbleness, what I can say is the 3H formula. अगर आपको जानना है, पहचानना है, कुछ enjoy करना है, मानना है कुछ चीजों को, तो उस चीज के लिए I think your honesty, your hard work, your humbleness. One person should be humble. You should be down to earth. मतलब आज अगर कोई मतलब बोलेगा and वो stardom वाला feeling अगर झाड़ने लग जाऊं सबके ऊपर, तो I think that doesn't work long lasting. And आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो एंजॉय करना है, जो वर्ल्ड को, पूरी दुनिया में अगर किसी को कुछ एंटरटेन होना है, मतलब मजा लेना है उस चीज का, तो वो मजा कब लेगा? जो बंदा एकदम डाउन टू अर्थ होगा. डाउन टू अर्थ होने के कुछ चेक पॉइंट्स है. So that checkpoints are your hard work, your struggle days. Though you are with silver spoon nowadays, I must say
हमारी जनरेशन, हार्दिक भाई, कौशल भाई, आपकी जनरेशन, मतलब हम इफ वी आर टॉकिंग तो चलो हमने, हमारे पेरेंट्स ने हार्डवर्क किया, वो देख के आए, बट इफ बीइंग अ पेरेंट, आप भी, हम भी, मैं भी, और जो भी अभी पेरेंट्स एंजॉय करते, वो अपने किड को तो बेस्ट ही देने वाला है, तो वो उसे इतना स्ट्रगलिंग खुद भी करेगा तो उसे नहीं दिखाएगा, उसे बेस्ट देगा, सिल्वर स्पून से ही देने वाला है। एंड 5 स्टार, अच्छे स्कूल, अच्छे एकेडमिक, अच्छा फॉरेन एजुकेशन, एवरीथिंग उसके माइंड में प्लान चलते रहेंगे। बट आई मस्ट से वी नीड टू ये एंटायर कम्युनिटी को, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को, किड्स को नहीं, हमें सभी को ये समझना पड़ेगा कि, और मैं खुद भी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आई एम बहुत विद्वान इन दिस, बट इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। So that is the, I think, what I feel is the answer. करेक्ट करेक्ट। यस, ऑडियंस का ऑलरेडी क्वेश्चंस आने चालू हो गए, और भी अगर क्वेश्चंस है तो प्लीज ऑडियंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए एंड विल आस्क दैट क्वेश्चन टू आशीष सर। एक ऑडियंस Yeah. क्वेश्चन लेते हैं, कृष्णा Yeah. सिंह, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वी शुड लर्न टू बी अ आईटी एक्सपर्ट। Okay. IT एक्सपर्ट के लिए फर्स्ट योर बेस कंसेप्ट शुड बी क्लीन। बहुत टाइम ऐसा होता है आज के डेट में इंस्टीट्यूशन के, जहाँ पे लोग आते हैं सीधा IT एक्सपर्ट की ही बात करते हैं कि मेरे बच्चे को कोडिंग सिखा दो, प्रोग्रामिंग सिखा दो, तो वैसे नहीं। वी मस्ट सजेस्ट कि आपको 1 2 3 तो जाना ही है। इफ यू वांट टू लर्न हिंदी लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज और इंग्लिश, योर ग्रामर शुड बी देयर, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, लाइक दैट। वैसे ही यहाँ पे भी यही सेम रूल है। बट इफ वी आर टॉकिंग टेक्नोलॉजी, IT एक्सपर्ट बनना है, बूम इज देयर, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। एंड ये लॉकडाउन में फ्रॉम मिनिस्ट्री टू प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर, everyone, single Tom, Dick and Harry, everyone is using technology. IT experts की नीड डे बाय डे बढ़ेगी, लर्न करना चाहिए। देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजी, आई थिंक we must guide them afterward also, because बहुत उस पे ही 2 hours का सेशन मेरा लग जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी मस्ट से के रूट से जाइए, आपकी इंटरनल इंटरेस्ट जो रहेगी उसमें जाइए। एंड जस्ट 4 पार्ट आई मस्ट से कि सॉफ्टवेयर इज देयर, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इज देयर, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इज देयर, एंड nowadays if the person or a banda from accountancy or computerized accountancy, ERP, cloud accounting and everything is very important nowadays, because that all things are the backbone of the industry. So I must say these 4 pillars of the becoming the person become the IT expert. करेक्ट करेक्ट। जैसा आपने बोला कि आईटी का बूम आने वाला है, एक हमने और एक चीज देखा है, जैसे कि सब लोग ऑनलाइन चले गए, तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये चीज के लिए भी एक अब अलग ही स्कोप बनेगा, बिकॉज नाउ एवरीवन वांट्स देयर बिजनेस ऑनलाइन, काम ऑनलाइन, तो शायद एडवर्टाइजमेंट ही ऑनलाइन होगा। तो अगर कोई बंदा उसमें अगर जाना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए भी? मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर किसी को जाना है तो मतलब उनके कोई बिजनेस, या ऑनलाइन, मतलब किसी को अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग संभालना है, किसी को किसी का बनना है, तो मतलब आप उसका क्या स्कोप देखते हैं, एंड आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ दे शुड उनके करंट कोई प्रोफेशन और जॉब और बिजनेस को प्लेटफॉर्म में लेके जाना है? योर क्वेश्चन इज राइट, आई गॉट राइट, या। सो बेसिकली देयर आर अगेन 2 ऑप्शन। वन इज माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा। बहुत जन ऐसे थे शुरुआत में, लॉकडाउन में ऐसे ही बैठे थे कि नहीं इट्स ओके, लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। किसी को इस लेवल की जजमेंट नहीं थी। इवन गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट dragging lockdown because of the spreading of this virus and everything. So no one is aware, मतलब इससे किसी को blame नहीं कर सकते। But the point is that कि एक mindset था बहुत जन का कि नहीं ये सब नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी में कैसे जाएगा। And you won't believe, I must say, from milk dairy से लेके अनाज किराना, ग्रोसरी से लेके एजुकेशन, each and every, you just name it, and everything is turning towards online nowadays. We got so many inquiries, even diamond jewelries वाले भी सोचते थे कि हमारा बिजनेस तो एकदम सिक्योरिटी वाला है, but now I got those inquiries कि सर हमें कैसे कन्वर्ट करना है। I got grocery वाले कि सर हमें कैसे कन्वर्ट करना है। Even Jio, Reliance Industries has announced for grocery people, they have tie up with Facebook, WhatsApp, and बहुत सारा उन लोग का प्लानिंग चल रहा है। एंड डाउन द लाइन विद इन 1 2 months यू कैन सी दिस टेक्नोलॉजी, मतलब आपके एक हाथ में। नाउअडेज ऑल्सो वी कैन बाय ग्रोसरी ऑनलाइन। आपको अगर कुछ
मंगाना है तो यू कैन डेफिनेटली सुई से लेके एरोप्लेन तक आप टेक्नोलॉजी पे ही जा सकते हो. तो दो चीज है, एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा लोगों को, उसको कन्विंस करना पड़ेगा. एंड सेकेंड, इफ दे कैन लर्न, एज यू नो समवन हैज आस्क्ड राइटली कि कैसे आईटी एक्सपर्ट बने, तो उन्हें सीखना पड़ेगा. और एल्स दे नीड अ कंसल्टेंट, दे नीड वन काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर पीपल जो उन्हें कंसल्ट करे, जो उन्हें गाइड करे एंड डिजिटल मार्केटिंग के फॉर्म में लेके जाए. आई हैव सीन मेनी स्टार्टअप्स, आई हैव सीन मेनी एक्सपीरियंस इंडस्ट्री वाले, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस वाले, जो लोग टर्नअप हो रहे, दोज आर पॉजिटिव. ये लॉकडाउन में उन्होंने एक राइट डिसीजन ले लिया कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे कैसे आए. ऐसे ऐसे बिजनेसेस, ऐसे ऐसे प्रोफेशन जो लोग हम सोच नहीं सकते थे, दोज people have come up on technology platform, which I can share. मेडिकल वाले, फार्मा बिजनेस वाले, अनाज ग्रोसरी वाले, ज्वेलरी वाले, सलोन इंडस्ट्री वाले, दोज सलोन, अपने को लगता है बाल तो जगह पे जाके ही काटेंगे, बट यस वो जगह पे होगा, बट उनकी सर्विस देने की, उनकी अपॉइंटमेंट, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, क्लाइंट के बुकिंग्स करना possible है on technology. And they have started home services and everything. I have many examples near every one of us. So there are so many examples we can say. So technology must change, is constant. Transformation को accept कर लेना चाहिए. That is the only answer. करेक्ट. आपने आपके प्रोफाइल में 3 वर्ड डाले हैं: एडुप्रेनर, करियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर. आप अपने आप को बेस्ट किस में मानते हो? मतलब आपका बेस्ट किस में आता है? Again the bouncer question. Yeah, but I really appreciate, nice question. जो चीज एकदम नजदीक है हमारे से, उसमें सभी में बेस्ट मानते हैं हम. So all 3 are near to me. But the point is that when first start with counseling, मतलब जैसे आपने एक क्वेश्चन आगे भी पूछा कि सामने वाले की स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रोवाइज करना है. So being the entrepreneur, being the educationist, being the teacher, I must say that सामने वाले को हमें अच्छा जानना पड़ेगा, उसके IQ लेवल को चेक करना है, उसकी कोई टेस्ट करनी पड़ेगी, एप्टीट्यूड काइंड ऑफ, एंड उसकी इंटरेस्ट सेक्टर कहाँ पे, इंटरेस्ट फैक्टर कहाँ पे, वो सब हमें जानना पड़ेगा. सो दैट इज द पार्ट ऑफ कहाँ ना कहाँ काउंसलिंग. ओके, मतलब आप एक पहले तो बेस्ट काउंसलिंग करने, एंड यू व्हाट वी मस्ट से दैट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के सामने वाले के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा. सो फर्स्ट चेक पॉइंट इज दैट. द सेकंड वन, हमें उसके इंटरेस्ट को फिर हमें मोटिवेट करना है. जैसे आपने बताया कि किसी का स्ट्रेंथ बन सकता है कोई चीज, तो उसे कैसे करना है. एज आई टोल्ड कि टीचर अच्छे होने चाहिए, उसे क्वालिटी चीज मिलनी चाहिए, उसे जो चीज के इंटरेस्ट है उसके ट्रेनर अच्छे होने चाहिए, टेम्पटिंग टॉपिक होने चाहिए, उसे डाइजेस्ट इजी हो जाए. ओके, सो दैट इज द सेकेंड मोटिवेशन. फर्स्ट वन इज काउंसलिंग, सेकेंड मोटिवेट, ये कनेक्ट होते जाता है. एंड द थर्ड वन इज ऑटोमेटिकली बिजनेस आने वाला है. तो तो बिकम एंटरप्रेन्योर कि वो सामने वाला आपको छोड़ के कहाँ नहीं जाएगा. इट्स लाइक अ डॉक्टर. आई मस्ट गिव अ एग्जांपल कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, हजारों रोग रहते हैं, तो वो सब रोगों की दवा नहीं दे देगा. फर्स्ट डे सेकेंड डे वो चेक करेगा आपको, 2 दिन तक पहले चेक करेगा, टोटल 5 दिन का कोर्स देगा, एंड देन बाकी के 2 दिन में वो जजमेंट पकड़ लेगा कि आपका एग्जैक्टली पेन फैक्टर क्या है, आपको पेन कहाँ पे होगा. दैट्स इट. वो सेम चीज टीचर को करना है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था और उसी के ऊपर से एक ऑडियंस का क्वेश्चन भी आ ही गया. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑडियंस का क्वेश्चन कनेक्ट कर देते हैं. एक नितेश है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है: हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फ्रॉम हियर ऑन, सीइंग दैट इवन 5-year-old इज यूजिंग सो कंफर्टेबली, मतलब जो भी गैजेट्स है बहुत कंफर्टेबली यूज कर पा रहा है, बट स्टिल एक फॉर्मलाइज्ड कंप्यूटर एजुकेशन तो चाहिए ही. तो आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का फ्यूचर कैसे देखते हो? एंड यस, ऑफ कोर्स मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि आप अपने आप को या राज कंप्यूटर को इसका फ्यूचर कैसे देख रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू नेक्स्ट? बिकॉज एज एन कंप्यूटर समझो कैसे पढ़ाएंगे होम एंड व्हाट यू कैन से. आई मस्ट से नाइस क्वेश्चन. बेसिकली मैंने भी 5-7 years की जर्नी ये फील्ड में पास कर दी थी. इसके बाद मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आजकल सब स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, एंड सो मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज में भी इंटीग्रेटेड है. तो मतलब कौन सीखेगा? एंड गूगल बाबा इज देयर, अगेन हर चीज का जवाब है, यूट्यूब इज देयर. तो 5-7 years में मुझे सेम क्वेश्चन आया था
सेम क्वेश्चन मैंने भी किसी को किया था जो हमारे गुरु थे, उनको किया कि है अभी, और same answer, and now I am convinced because in 20 years I have seen many days. तो ऐसा है कि हर गैजेट जो बच्चा यूज कर रहा है, या इफ यू आर टॉकिंग द क्वेश्चन में ऐसा था कि किड भी 4-5 years वाले भी यूज कर रहे हैं, तो वो एक यूजर है. ओके, नाउ हियर यूजर में, कंज्यूमर में और क्रिएटर में डेफिनेशन चेंज हो जाती है. सो मैं भी यूजर हूँ, आप भी यूजर हो. एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर यूजर. वी ऑल आर यूजिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दिस दैट, बहुत सारे यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स यूज कर रहे हैं. तो यूजर बनना है आपको कंज्यूमर बनना है, आपको कुछ बाय करना है उस पे, कि फिर आपको उस चीज का क्रिएटर बनना है. किसी ने व्हाट्सएप सोचा एंड दे आर द मल्टी-बिलियनियर. किसी ने फेसबुक सोचा, दे आर द मल्टी-बिलियनियर. फेसबुक वाले ने सब ऐप को खरीदना स्टार्ट कर दिया. सो क्रिएटर. ओके, सो देयर आर अगेन द सिंपल आंसर इज कि आप यूजर की कैटेगरी से कंज्यूमर की कैटेगरी पे जाओ, कंज्यूमर की कैटेगरी से क्रिएटर बनो. आप जब किसी को बनाते हो तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा, और इवन हम खुद भी, सब लोग फ्रॉम बॉर्न बहुत सारा नॉलेज लेके आ गए. एज आई टोल्ड कि हम भी विद्वान नहीं है, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट. हम हमारी प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, हम डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ सीख रहे हैं. एंड टिल द टाइम, टिल द डे, इन दिस लॉकडाउन ऑल्सो वी मस्ट से कि हम भी रोज कुछ नया सीख रहे हैं. तो वो मतलब वास्ट एरिया है, ओशन है, स्काई लिमिट का मीनिंग जो है वही ये फील्ड का मीनिंग है. आई थिंक ऑडियंस को आंसर कन्विंस हुआ होगा, बट स्टिल नहीं है, तो वी कैन शेयर मोर एग्जांपल. नहीं, डेफिनेटली, मतलब ये 3 एग्जांपल तो डेफिनेटली मेरे माइंड में उतर गया कि यूजर, कंज्यूमर, क्रिएटर बनना है तो एक एजुकेशन चाहिए. मतलब क्रिएट समबडी ना, आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं देना है, वो तो सब दे रहे हो, तो बुक भी दे रही है ना. मतलब थोड़ी स्कूल और कॉलेज ने बोला है कि आपको कोचिंग में जाना है, बट कोचिंग में स्टूडेंट तब जाता है जब उसे वहाँ पे कोई अच्छा मेंटर मिलता है, उससे अच्छा गुरु मिलता है, उससे कुछ करने की मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है, एक अच्छा आइडियल मिलता है, तब जाके वो वहाँ पे जाता है. ओके, सो मंदिर में क्यों जाना है, हम कोई भी गॉड के प्लेस पे क्यों जाते हो, ओके, दर्शन करने क्यों जाते हो, एक ही रीजन है कि वहाँ की पॉजिटिविटी, वहाँ पे तो वन वे है, हम ही बोलते हैं, सेकेंड साइड से तो कोई आंसर नहीं है. बट देन टू बी पीपल आर गोइंग टू अवर रिलीजियस प्लेसेस, ओके, जो जिसमें बिलीव करता है. तो इट इज ऑल अबाउट योर ओन कन्विक्शन, आपकी खुद की श्रद्धा, और आपको कुछ नया वहाँ से पॉजिटिव लेना है. तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, आशीष सर, एक लास्ट ऑडियंस क्वेश्चन. टाइम भी अभी ऑलमोस्ट खत्म होने की तैयारी में है, तो इफ यू जस्ट वेरी क्विकली आंसर के व्हाट आर द बेस्ट कोर्सेज if we have to make career in IT. Okay. The question was from Krishna. Okay. The best course, अगर हम टाइम को मद्देनजर रख के देखें तो फर्स्ट वन इज nowadays need of the hour is digital technology. Digital marketing is one of the super thing. If people are intellectual, थोड़ा कोडिंग वगैरह अच्छा लगता है तो सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट पार्ट. कोई एकेडमिक, बहुत जन का ये सवाल होता है कि हमारा एकेडमिक इतना अच्छा नहीं है, मतलब हम जस्ट पास होते हैं, वी आर एवरेज स्टूडेंट, 50, 60, 70 बस, तो हम लोग कैसे सर बड़े बड़े डिग्रीज को हासिल करें. इट्स ओके, नथिंग टू वरी. आपका एकेडमिक कहाँ ना कहाँ आगे पीछे एवरेज हो रहा है ना, तो यू गो विथ हार्डवेयर थिंग्स. अगर आपको टेक्निकल में इश्यूज सेटल करना आता है या सीखना है तो वो, तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कॉमर्स के बंदे अगर खाली ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई मस्ट सजेस्ट टैली सीख लो, लाइफ बन जाएगी. लाइफ इज जिंगा लाला, बिकॉज इट इज द बैकबोन. So digital marketing, accountancy, hardware and a software, okay, and website and the graphic is the most important nowadays. Everything is content से भरा हुआ रहता है, so graphic and the web is very important tool. Right. Okay. So audience, if you have any further questions, I would request you कि आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब पे भी ये एपिसोड कल अपलोड हो जाएगा. You can directly ask questions over there. और ना, राज कंप्यूटर्स के नंबर्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है. राज कंप्यूटर्स आपके हेल्प के लिए ऑलवेज ओपन है. सो कमिंग टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन, सर बहुत मजा आया. ये जो आपने जो पूरे एक सेशन में आपने जो हम लोग को जो सिखाया, उससे मैं खाली इतना समझ सकता हूँ और हमारे ऑडियंस भी उतना ही पकड़ रहे कि बड़ा होने के लिए किसी और को छोटा नहीं करना चाहिए. एंड ये जो आपने जो बोला है कि जो ज्यादा दो,
तो अगर 100 का आप 110 दोगे तो एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलेगा, सोसाइटी को मिलेगा, दैट वुड अगेन एनहांस द ह्यूमैनिटी। एंड ऑफ कोर्स अगर अगर एक सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं गुरु, और अगर मैं उस वर्ड को ब्रेक करता हूं, गु एंड रू, गु इज रिमूवल ऑफ डार्कनेस एंड रू इज Gu is removal and Ru is darkness. Yes. So removal of darkness Yeah. combined होके बनता है गुरु। तो जो आपने जो लास्ट क्वेश्चन में जो आपने जो एक अंधकार था कि भाई आईटी में मुझे क्या सबसे बेस्ट कोर्स करना चाहिए, तो आपने जो बहुत ही क्विकली जो उसकी जो डार्कनेस थी उसके माइंड में आपने तुरंत ही उसकी हटा दी। सो अगेन थैंक यू सो मच Thank you. आशीष सर, एक सक्सेस स्टोरीज पे आने के Thank लिए you. और आपकी जर्नी, आपने आपने ये जो आपकी जो इनसाइट्स थी, जो आपके थॉट्स थे, जो आपने हमारे साथ शेयर किए, थैंक यू सो मच। एंड सर वंस अगेन अ वेरी हैप्पी गुरु Thank you. पूर्णिमा। ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए Yeah. रखें। ओके, Thank you very much, and I wish a success story. Huge respect for you guys कि आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हो, believe me friend, बहुत जनों को आप मोटिवेट कर रहे हो, बहुत जनों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हो, अच्छे आप मेंटर्स को लेके आने की कोशिश करते हो। आई हैव गॉन थ्रू ऑल योर एपिसोड and amazing. From bottom of my heart I wish and I really bless you, and I can see that success story will do a one day big miracle. लिख लेना ये बातों को, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिविटी फैला रहे हो एक ऐसे सिचुएशन में, इस तरह के एक वायरल सिचुएशन में जहाँ पे अब है ना वायरस लोगों के दिमाग में बहुत है, मतलब लोग बेचारे लॉकडाउन में लॉक हो चुके हैं। ऐसे टाइम में वॉट एवर नॉलेज एंड द पॉजिटिविटी एंड वाइब्स आप लोग ये माध्यम से दे रहे हो, आई लिटरली आई रिस्पेक्टफुली दोनों हाथ जोड़ के आपको सैल्यूट कर रहा हूँ कि यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग वर्क। बिकॉज ये करने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए। आज गुरु ये आप भी एक गुरु का ही काम कर रहे हो, कहाँ ना कहाँ प्लेटफॉर्म बन के, ये टेक्नोलॉजी को प्लेटफॉर्म बना के एक दूसरे को मिला के। तो आई मस्ट से कि आप भी एक गुरु का ही काम कर रहे हो बहुत जनों के लिए, बहुत ऐसी ऑडियंस है जो ये चीज से बहुत कुछ पाएगी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद मिल गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो थैंक यू आशीष सर, बहुत ही काइंड वर्ड थे। एंड यस ऑफ कोर्स हमारा जो मैसेज है वो अगर सब तक पहुंच रहा है तो बस हमें वही चाहिए, और तो कुछ नहीं है, बाकी सब तो है भगवान देने के लिए। सो थैंक यू अगेन आपकी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए, ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। एंड ऑडियंस, आज आपने जो क्वेश्चन पूछे उससे आशीष सर भी काफी इम्प्रेस थे। सो थैंक यू फॉर बीइंग सो इंटरैक्टिव। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। एंड ऑडियंस, कीप लाइकिंग, लविंग, शेयरिंग सक्सेस स्टोरीज एंड सब्सक्राइब सक्सेस स्टोरीज। थैंक चलो बाय 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 सर। कौशिक भाई, बाय हार्दिक भाई, थैंक यू वेरी मच।